ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ آفس سے باہر نکلی تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ آج بھی اس کی اپنے کولیگ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کوئی اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی، مگر مجبوری تھی۔ وہ وہاں پر کوئی اس طرح کا تماشا نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ آفس کا ماحول بہت زیادہ سخت تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مزید اس آفس میں کام نہیں کرے گی اور کل ہی ریزائن دے دے گی۔ اس نے امریکہ کی اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی طرف سے بھی جواب موصول ہونے والا تھا۔ اسے امید تھی اس بار اس کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن پارکنگ ایریا کی طرف جا رہے تھے جب اسے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، نگاہیں اٹھا کر چاروں طرف گھمائی تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، مگر لڑکی مسلسل چلا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ذہن پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا اور آواز کا تعاقب کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ آواز بلڈنگ کے پچھلے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے اوپر قابو پایا۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس کے دل میں آیا وہ پولیس کو کال ملا دے کیونکہ اسے معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت اس کا موبائل آف تھا چونکہ آفس ٹائمنگ تھی اور وہ بریک سے پہلے ہی باہر نکل آئی تھی۔ اسی وجہ سے چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا آفس بھی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا اور وہاں پر اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ پارکنگ میں دور دور تک گاڑیاں ہی کھڑی تھیں، وہاں پر اسے کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود ہی ہمت کی اور پچھلے حصے کی طرف چل دی۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کو کسی آدمی نے بازو سے پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چلائی، اے رک جاؤ ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کروں گی۔ ارمان خان زادہ نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر اسے ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جو کہ ارمان کو دھمکی دے رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اس لڑکی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دوبارہ سے اس کو باہر لے جانے لگا۔ مشل بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور زمین پر پڑا ہوا ایک ڈنڈا زور سے ارمان کے سر پر دے مارا۔ ایک لمحے کے لیے تو ارمان کا سر چکرایا تھا، اس نے اس لڑکی کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی آزاد ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اب وہاں پر ارمان اور مشل ہی کھڑے تھے۔ فاروق خانزادہ جو کہ اپنے آفس کی کھڑکی میں کھڑا تھا اور اس منظر کو بہت ہی پرسکون انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مشل وہاں پہنچ گئی ہے تو اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ مشل کی نادانی اور اس کی کم عقلی سے بہت اچھے سے واقف تھا کیونکہ وہ نادان لڑکی اس کی کزن تھی۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے اس کو اس کمپنی میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی۔ ارمان خانزادہ جو کہ اس کمپنی کا مالک تھا وہ بہت کم وہاں پر آتا تھا۔ دوسری طرف مشل کو یہاں پر کام کرتے صرف 1 مہینہ ہی گزرا۔ اس کی 1 مہینے میں ایک بار بھی اپنے باس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اسے اپنے باس سے ملنے میں کوئی خاص دلچسپی تھی۔ وہ تو یہ جاب بھی کرنا نہیں چاہتی تھی مگر پورا دن گھر پر بیٹھ کر بور ہوتی رہتی۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ جب تک اسکالرشپ نہیں لگ جاتی تب تک وہ یہیں پر کام کر کے اس طرح سے ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور اس کا ذہن بھی بھٹکا رہے گا۔ مگر وہاں پر بھی اس کی خاور نامی ایک لڑکی کے ساتھ انبن ہو گئی۔ ابھی وہ اسی لڑائی کر کے باہر نکلی تھی کہ پچھلے حصے سے چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو میں اونچی اونچی آواز میں چلا کر سب لوگوں کو یہاں جمع کر لوں گی اور ان کو تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتاؤں گی۔ تم میں کیا ذرا بھی غیرت نہیں؟ وہ اس بات کو نظر انداز کر چکی تھی کہ جو آدمی اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا سکتا ہے وہ تو اس کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئی اور اب اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مشل کی بازو پکڑنا چاہے مگر اس کا ہاتھ اٹھا اور ارمان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی۔
तुम जैसे 2 टके के और घटिया लोगों से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों को किस तरह औकात याद दिलाई जाती है। फारूक भी वहां पर पहुंच गया था। सामने का मंजर देखकर उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इस नादान लड़की ने अपने बॉस को थप्पड़ मारा था। फारूक अरमान के काफी करीब था, जिसकी वजह से वो इस बात से वाकिफ था कि वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी है, लेकिन वो मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होते उनको कानून के सामने पेश करता था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और अभी वो जिस लड़की को पकड़ कर ले जा रहा था वो उसके दुश्मनों ने भेजी थी और वो काफी दिनों से यहाँ पर जासूसी कर रही थी। इस बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें अरमान ने अपना इम्पोर्टेंट सेटअप बना रखा था। कोई भी उस कमरे में आता जाता नहीं था, ना ही किसी को इस कमरे से कोई खास दिलचस्पी थी। उसके चारों तरफ ही अरमान ने कैमरे लगाए हुए थे। वो लड़की उसमें दाखिल हो रही थी जब अरमान ने उसे पकड़ लिया और अब वो उसे तफ्तीश करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जा रहा था कि इस छोटी सी लड़की ने सब कुछ खराब कर दिया। अरमान के ऑफिस से पिछले हिस्से का नज़ारा साफ नजर आता था, मगर उसके ऑफिस में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी सिवाय फारूक के। वो वहां पर कुछ फाइल रखने गया जब उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ों का ताक़ुब करते हुए खिड़की में जा खड़ा हुआ तो अपनी नादान कज़न को देखकर इतना तो उसे अंदाज़ा हो ही गया था कि अब ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, और जो उसने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था वो हकीकत में हो चुका था। मशल ने अरमान के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, फारूक तेजी से अरमान के पास गया। सर प्लीज़ इसको छोड़ दें, इससे गलती हो गई। इसकी जगह मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मशल तुम यहाँ से जाओ। उसने वहाँ से मशल को जाने को कहा तो वो अरमान को गालियाँ देती वहाँ से चली गई। वो अभी भी बाज नहीं आ रही थी। तुम जानते हो कि मेरे कानून में इस तरह के लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं। वो अब उसकी आंखों में देखता हुआ खूनख्वार लहजे में बोला, मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ, दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मगर सर, उसने कुछ कहना चाहा तो अरमान ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। इस वक्त उसका दिमाग बुरी तरह घूमा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था वो सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि उससे ऊंची आवाज में बात कर सके, और इस लड़की ने, जो कि उसकी ऑफिस में काम करती थी, उसके चेहरे पर थप्पड़ मार चुकी थी। जब फारूक वापस अपने घर गया तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो सीधा अपनी कज़न के कमरे में गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं उस आदमी से डरती हूँ। मुझे पता है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर वो बहुत पुरजोश अंदाज में उठी और अपनी दराज में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट निकालकर उसके सामने रख दिया। ये क्या है? ज़रा चेक तो करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि क्या है, उसने फारूक से हल्के फुल्के अंदाज में कहा। जब उसने वो डॉक्यूमेंट खोले, सवालिया नजरों से अपनी कज़न के चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या तुम वाकई अमेरिका जा रही हो? जाहिर सी बात है, इतनी मुश्किल से तो मेरी स्कॉलरशिप लगी है। तुम्हें यहाँ पर मसला क्या है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। फारूक एकदम ही बेचैन हो गया। मशल के माँ बाप का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था और अब वो फारूक के घर में ही रह रही थी, जो कि उसके ताया जान का बेटा था। मसला कोई भी नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी सेटल हो जाऊँ। मैंने इतनी अच्छी कंपनी में तुम्हारी जॉब करवाई थी, मगर तुमने अपने साथ साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करवा दिया। वो ये कहकर उसके पास ही बैठ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे बताओ कि तुमने उससे पुलिस के हवाले किया या नहीं? वो कोई मुजरिम नहीं था, बल्कि मुजरिम को पकड़ रहा था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेवकूफ़ लड़की, जिस लड़की को तुमने भगाया था वो उसके दुश्मनों की तरफ से आई हुई एक जासूस थी। और फिर थोड़ी ही देर में फारूक उसको अरमान की हकीकत के बारे में बता चुका था। ये सुनकर उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। अरमान नामी इंसान के बारे में उसने बहुत सुन रखा था। कई बार तो उसे अपनी दोस्तों से भी सुनने को मिला था,
मगर वो कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती थी और अब वो उसी को थप्पड़ मार कर आ चुकी थी। या मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या वो मुझसे बदला लेगा? तुम्हें लगता है कि वो चैन से बैठेगा? ये तो शुक्र है कि तुम्हारा वीज़ा लग गया है। बस जल्द अज जल्द अपने टिकट कराओ और पाकिस्तान से फरार हो जाओ, वरना इससे पहले अगर तुम उसके हत्थे चढ़ गई तो उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ना। प्लीज़ मुझे डराओ तो नहीं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हारी वजह से उसने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है। इतनी मुश्किल से मैं उसके करीब हुआ था। वो अपनी पेशानी को मसलते हुए बोला। चलो खैर है, टेंशन ना लो और बेफिक्र हो जाओ। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। फारूक ये कहकर उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से दिलावर खानजादा को कॉल मिलाई। उसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। दिलावर उसकी यूनिवर्सिटी का फेलो था। वो उससे मोहब्बत भी करता था। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी। दोनों ने फैसला किया था कि वो बहुत जल्द शादी कर लेंगे, मगर फिर दिलावर के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो गांव वापस चला गया। अब उसके बाबा सरदारी छोड़ चुके थे। उसकी जगह दिलावर ने सरदारी संभाली हुई थी। उन दोनों का ये भी प्लान था कि वो दोनों एमफिल के लिए इकट्ठे अमेरिका जाएंगे। दिलावर ने तो ये भी कहा था कि वो उसका सारा खर्चा उठा लेगा, मगर वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए अपनी स्कॉलरशिप के फाइनल होने का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, आज आपको हमारी कैसे याद आ गई? दूसरी तरफ से शिकायती अंदाज में शिकवा मौसूल हुआ तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। सिर्फ यही शख्स था जो उसकी कमी और उसकी मौजूदगी को महसूस करता था। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, जल्दी से सुनाइए, क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया है। तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे साथ बाहर जाओगे, तो वक्त आ गया है। हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और फिर डिग्री के बाद वापस आकर निकाह कर लेंगे। वो छोटे बच्चों की तरह पुरजोश अंदाज में चिल्लाते हुए बोली तो दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। मैंने शायद तुम्हें बताया था कि अब मेरे लिए बाहर जाना मुमकिन नहीं होगा। बाबा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मेरा भाई छोटा है, वो लंदन में होता है। मैं नहीं चाहता वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाए। मैं उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए अब ये सब कुछ मुझे संभालना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम कहो तो बाहर जाने के बजाय तुम मेरी हवेली में रुखसत होकर आ सकती हो। मैंने अपनी अम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर ली थी। मैं बस एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हें भी बता सकूं। मेरी अम्मी को कोई मसला नहीं, वो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। वो तो तुमसे मिलना भी चाहती हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हें पता है कि मैंने कितना इंतज़ार किया है, और अब जब मेरी स्कॉलरशिप फाइनल हो रही है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। तुम्हें हम दोनों में से एक चीज़ को चुनना होगा। अब की बार दिलावर ने संजीदगी से कहा। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुमसे दूर होना मतलब मौत को गले लगाना है। वो रोहांसी हो गई थी। मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं मशल। मेरे ऊपर अब हवेली की जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें तो पता है कि मुझे सरदारी का भी ओहदा मिल गया है, और अब मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं जल्द अज जल्द इस हवेली के लिए सरदारनी ले आऊं। और जिस सरदारनी को मैं पसंद करता हूं उसको तो मेरी ज़ात में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। वो जान पूछकर उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। माफ़ करना, मगर मैं अपनी ये स्कॉलरशिप नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कोई मसला नहीं। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल काट दी थी, जबकि दूसरी तरफ दिलावर खानजादा ने बेजारी से मोबाइल बेड पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया। लाउंज में ही उसकी महबूब तरीन बीवी बैठी हुई थी, जिससे वो बेतहाशा प्यार करता था। फिजा से उसका बचपन में ही निकाह हो गया था, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी गया तो मशल का हुस्न देखकर उसकी तरफ माइल हो गया। उसे मशल से मोहब्बत नहीं थी, वो बस उसके पास जाना चाहता था और उसको हासिल करना चाहता था।
मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे अंदाज़ा हो गया कि वो ऐसी लड़की नहीं है और वो कभी भी उसे खुद को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो हवेली वापस आ गया और बहुत धूमधाम से अपनी बचपन की मनकूहा से शादी कर ली। इस बारे में मशल को कुछ पता नहीं था और अब वो चाह रहा था कि मशल खुद ब खुद रास्ते से हट जाए, तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। दूसरी तरफ मशल बहुत परेशान थी। उसको लग रहा था कि वो इसके साथ गलत कर रही है, मगर वो स्कॉलरशिप को भी नहीं छोड़ सकती थी। शाम का वक्त था। सब लोग लॉन में बैठे हुए थे। उसके ताया जान भी वहीं पर मौजूद थे। मशल छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास गई, कुर्सी खींचकर बैठ गई। हाँ तो मशल बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तुम्हारी स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझे कह सकती हो। ताया जान बहुत शुक्रिया, मुझे बस आपसे दुआओं की ज़रूरत है। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? वह हल्के फुल्के अंदाज में बातें कर रहे थे। 2 दिन के बाद रात के 3 बजे फ़्लाइट है। तो फिर ठीक है, मुझे कह देना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आऊँगा। और अपना सारा सामान भी पैक कर लेना, कोई भी चीज़ यहाँ पर ना रह जाए, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर जाना। जी जी ताया जान, आप बेफिक्र हो जाएं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी ताई जान भी अब उसके लिए मोहब्बत शो कर रही थी, जबकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि ये सब कुछ उसके जाने की खुशी है। वो सब लोग जश्न मना रहे थे कि चलो इस लड़की से पीछा छूटने वाला है। जब उसके मामा बाबा का इंतकाल हुआ था, तभी ताया जान ने उसके बाप के सारे बिजनेस पर अपना कब्जा जमा लिया था, मगर वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी ना बोली थी। उसे बस एक छत की ज़रूरत थी और इज्जत वाली ज़िंदगी चाहिए थी। उसके ताया ताई उसे ये दे रहे थे, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसके बाप की एक दुकान भी थी जिसका किराया उसके पास आता था, जिसकी वजह से उसके अखराजात पूरे हो रहे थे। वो बाकी लड़कियों की तरह अयाश पसंद नहीं थी और ना ही उसे फजूल चीज़ों में कोई दिलचस्पी थी। वो हमेशा अपनी ज़ात में ही मगन रहती। और अभी कुछ अर्सा पहले उसे बहुत हैरत हुई जब फारूक ने अपने बाप का बिजनेस छोड़कर अरमान के साथ काम करने का फैसला किया, और फिर बाद में उसे भी अरमान के ऑफिस में ही आने की दावत दी। वहाँ पर सैलरी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो भी मान गई थी, और अभी उसके पास टाइम भी था। अगले ही दिन उसने ऑफिस में कॉल करके रिज़ाइन दे दिया। जब अरमान को इस बारे में मालूम हुआ तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तो इस लड़की का अब ऑफिस आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसको सब लोगों के सामने जलील कर सके, मगर वो लड़की तो वहाँ से फरार होने के बारे में सोच रही थी। उसने अपने गार्ड को कॉल मिलाई और उस लड़की के बारे में पता लगाने को कहा। मुझे हर हाल में उस लड़की की सारी डिटेल चाहिए, और फिर 2 दिन के अंदर अंदर वो मुझे मेरे फार्म हाउस पे चाहिए। अगर किसी भी किस्म की गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने गार्ड्स को खबरदार कर चुका था। सब चौकन्ना हो गए थे। दूसरी तरफ जब उसने दोबारा से दिलावर के मोबाइल पर कॉल की तो दूसरी तरफ से किसी औरत ने ही मोबाइल उठाया। हेलो, दिलावर तो इस वक्त वॉशरूम में नहा रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा। उसकी बीवी बहुत ही मासूम थी। दिलावर ने उसे अपने आगे लगा कर रखा हुआ था। उसकी बीवी को यही लगता था कि ये सारी औरतें काम के सिलसिले में उसे कॉल करती हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर औरतों की तादाद तो ऐसी थी जिसके साथ उसके शौहर का अफेयर चल रहा था। वो परेशान हो गई और सोचने लगी कि उसके कमरे में कौन हो सकता है, वो भी उस वक्त जब वो वॉशरूम में नहा रहा हो। वो अपने जहन पर दबाव डाल डाल कर थक चुकी थी, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपना सामान तो वो पहले ही पैक कर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने निगाहें उठाकर देखा। सामने ही उसकी ताया जान खड़े थे। रात के 1 बज रहे थे। चलो निकलते हैं, तुम वक्त से पहले वहां पहुंच जाओ तो ठीक रहेगा। जी ताया जान, ये कहकर वो अपना सामान उठाने लगी कि ताया जान ने आगे बढ़कर उसका बैग उठा लिया। उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो उसे लेकर हवेली से बाहर निकल गए। अभी वो रास्ते में ही थे कि काले रंग की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। इसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उस गाड़ी से कुछ नकाबपोश बाहर निकले तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। ताया जान ने उसे गाड़ी के शीशे ऊपर करने को कहा, मगर बहुत देर हो चुकी थी
उन आदमियों ने इन दोनों को बेहोश कर दिया। उसके ताया जान तो गाड़ी में ही पड़े हुए थे, मगर वो इस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जा चुके थे। जब उसको दोबारा से होश आया तो वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में मौजूद थी। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके सर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। उसने अपने जहन पर दबाव डाला तो थोड़ी देर पहले का वाकया उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा, मगर उस वाकये को थोड़ी देर नहीं बल्कि एक दिन गुजर चुका था। वो पूरा एक दिन बेहोश रही थी। आंखें खोल ली तो सामने ही वो दुश्मने जा बैठा था और सिगार सुलगा रहा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से निकलने की इजाज़त दूंगा? नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था। और जहाँ तक उस वाक़ये का सवाल है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी उस वक्त तुम हवाओं में उड़ रही थी। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो तुम्हें अब उसी गलती की सज़ा मिलेगी। अपनी सारी ज़िंदगी मेरी कैद में रहोगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। मेरी फ्लाइट है, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। टाइम क्या हुआ है? उसने बेचैनी से चारों तरफ निगाहें घुमाई तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे, जबकि वो तो रात के 1 बजे घर से बाहर निकली थी। तो क्या उसे यहाँ पर आए पूरा एक दिन गुजर चुका था? उसकी फ्लाइट, उसका फ्यूचर, उसकी स्कॉलरशिप, सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा था। गुस्से से उसके माथे पर बल पड़ गए। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती करने वाली है। वो उठी और उसको गिरेबान से पकड़कर झटकते हुए बोली, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरमान ने उसके हाथों से अपना गिरेबान छुड़वाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसका होंठ फट गया। आज तो तुमने ये जुर्रत कर ली, लेकिन दोबारा कभी इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। मुझे मार ही दो तो अच्छा है, क्योंकि अब वैसे भी मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मेरे सारे ख्वाबों को तुमने तोड़ डाला। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारते बहुत मजा आएगा। मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। अरमान ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटका। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मेरे एक हुक्म पर तुम्हारे ताया जान बैंक करप्ट हो जाएंगे और तुम्हारी खाला जान, जिनकी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बेटी है, बमुश्किल उसकी उम्र 17 साल होगी। ये सुनकर इसका दिमाग साएं साएं करने लगा था। उसकी खाला जान के घर बहुत ही देर से औलाद हुई थी। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? छोटी सी लड़की, मुझे तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द के बारे में पता है। अगर तुमने किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो फिर उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे थोड़ी कम। वो उसे बाईं आंख मारते हुए बोला। इसका दिल कर रहा था वो अरमान का मुंह तोड़ डाले, मगर वो बहुत बेबस थी। एक बार फिर से उसके कदमों में बैठकर सिसकने लगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूँगी। वो काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। तुम्हें मुझसे 1 साल तक निकाह करना होगा। उसको अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे तुमसे शदीद नफरत है। बाज़ औक़ात इंसान को कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं। अरमान के अगर फारूक को पता चल गया तो अभी। उसने बात मुकम्मल नहीं की थी कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। तुम मुझे उस लड़के से डरा रही हो जिसको मैं किसी खातिर में नहीं रखता। देखना, तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे। वो एक बार फिर से उसको धमकियां देने पर उतर आई थी। जब उसे ये पता चलता था कि अब मिन्नतों से कुछ भी नहीं होने वाला तो वो उसको धमकाने की नाकाम कोशिश करती थी। फिलहाल तो जल्दी से उठो और तैयार होकर नीचे आओ, मौलवी आ गया होगा। तुमसे निकाह करना है मैंने।
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं, वरना तुम्हें मैं एक और ऑप्शन भी देता हूं। अगर तुमने मुझसे निकाह ना किया तो अभी अपने गार्ड को हुक्म देकर तुम्हारी 16 साला कज़न को यहाँ बुला लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। इसे रोता हुआ छोड़ता वो वहां से जा चुका था, जबकि वो बहुत बेचैन हो गई थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। अरमान, तुम्हें तिगनी का नाच नचाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए तो मेरा नाम भी मशल नहीं। फिलहाल तो उसे किसी तरीके से यहाँ से निकलना था। वो उससे किसी भी सूरत निकाह नहीं कर सकती थी। उसने पूरे कमरे में देख लिया, मगर वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से फरार हो सकती। अचानक उसकी नज़र वॉशरूम में बने रोशनदान पर पड़ी। वो काफ़ी बड़ा था। इसने उठकर जब बाहर निगाहें दौड़ाईं तो उसके लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर थे और बाहर से लॉन का मंजर साफ नजर आ रहा था। वो खुलकर मुस्कुरा दी। वो बड़ी मुश्किल से रोशनदान तक पहुंची। काफ़ी ज़्यादा फासला था, मगर हिम्मत करते हुए उसने छलांग लगा दी। उसका पाँव मुड़ गया और तकलीफ के मारे बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लड़खड़ाते गिरते पड़ते वो बैरूनी गेट से बाहर निकलने ही लगी थी कि किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अरमान खानजादा था, जिसको देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। नहीं छोटी लड़की, ये कोशिश करने की दोबारा कभी हिम्मत मत करना। देखो तो, अपनी गलती की वजह से तुमने अपने पाँव को भी जख्मी कर दिया। तुम्हें पता भी है कि जब मैं तुम्हें तकलीफ में देखता हूँ तो यहाँ, वो अपने सीने पर इशारा करते बोला, यहाँ मेरे दिल में तकलीफ होती है। मैं तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकता। तुम मुझे मुस्कुराती भी अच्छी लगती हो। वो अजीब से अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरमान को भी पता था कि ये लड़की धमकियों से डरने वाली नहीं, इसी वजह से अब उसे इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर से खींचता अंदर लेकर गया, जबकि वो खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अंदर उसके बाकी दोस्त भी मौजूद थे, मगर इस लड़की को देखकर सब लोगों ने ही अपनी निगाहें झुका ली, क्योंकि किसी को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो उसको आंख भर कर देख सके। वो उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाता मौलवी साहब को बुलाने लगा और फिर गन की नोक पर उसने इस छोटी सी लड़की से निकाह किया। तुम बहुत ज़िद्दी हो, इस चीज़ का अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया है। ये बात याद रखना, मुझे लोगों की ज़िद तोड़ते हमेशा ही बहुत मज़ा आता है। तुम अभी कम उम्र हो और नादान हो, इसी वजह से मैं अगर तुमसे प्यार के साथ पेश आ रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दो। हैरत से मिशेल का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या वो इस सबको प्यार का नाम दे रहा था? पहले ज़बरदस्ती उसको अगवा करना, फिर उसको अपने घर में कैद कर लेना, और अब ज़बरदस्ती निकाह कर लेना। इसमें प्यार तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, तुमने इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना, और अगर अब मैंने तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके कमरे को लॉक लगा चुका था। वॉशरूम में जो रोशनदान मौजूद था वो उसको भी बंद करवा चुका था। अब उसका रुख अपने अड्डे की तरफ था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही फारूक था। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारी कज़न इस वक्त मेरे पास है, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। फारूक अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसा वो चाहता था वैसा ही हो रहा था। अब वो अपनी कज़न के ज़रिए उससे कागजात निकलवाने में कामयाब हो सकता था। फारूक एक बहुत बड़ी गैंग का लीडर था। वो गैंग गैर कानूनी कामों में मुलव्विस थी और अब उस गैंग की फाइल अरमान खानजादा के हत्थे चढ़ चुकी थी। उसमें फारूक का तो बायोडाटा नहीं था, मगर उसके ख़ास आदमियों का बायोडाटा इस फाइल में मौजूद था। वो हर हाल में वो फाइल पुलिस के पास पहुंचने से रोकना चाहता था। इसी वजह से तो वो अरमान के करीब हुआ और उसने उसके ऑफिस में काम करना शुरू किया ताकि किसी तरह से उस फाइल तक पहुंच सके। उससे अच्छी खासी दोस्ती होने के बावजूद भी कभी भी अरमान ने उसे अपने मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त ना दी।
लेकिन सर, वो तो अमेरिका जाने वाली थी और आपको नहीं पता कि घर वाले उसकी वजह से कितने परेशान हैं। अपने घर वालों को कह दो कि उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मुझे पसंद आ गई है और मैंने उससे निकाह कर लिया है। अरमान ने लापरवाही का इजहार करते कहा। और ये बात सच भी थी। वो नादान लड़की और ज़िद्दी इसके दिल को भा गई थी। इसी वजह से तो इसने उससे निकाह भी कर लिया था। मगर सर, वो तो फारूक, खबरदार, जो मज़ीद तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा किया। अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने साथ काम पर रख लिया है तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। बेजारियत से कहता वो वहाँ से चला गया। फारूक ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा और दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते कहा कि अब तुम्हारा टाइम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। पहले मैं तुमसे वो लिस्ट निकलवाऊंगा और फिर उसके बाद इत्मीनान से तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी दौलत पर भी अयाशी करूंगा। दूसरी तरफ मशल का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसका दिल कर रहा था वो हर चीज़ को ही आग लगा दे। उसे अपने घर में टिक कर बैठने की आदत भी नहीं थी और अब पूरा दिन एक कमरे में बंद रहना उसे किसी अजाब से कम नहीं लगता था। उसे घुटन महसूस होती थी। रात के वक्त जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया कि मशल साहिबा को नीचे बुला कर लाओ। उसकी मासूमियत और उसका हुस्न देखकर पहले ही वो अपने बदले को नज़रअंदाज कर चुका था। अब उसे सिर्फ ये पता था कि वो उस लड़की से प्यार करता है और अब उसके साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता है। बैठो यहाँ पर। मशल जैसे ही वहां पहुंची उसने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आपको जो बात करनी है आप वो करें। उसके दो टोक अंदाज पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मशल, तुम्हें पता है मैं बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ। मुझे तुम पर नहीं बल्कि ख़ुद पर हैरानगी होती है कि मैंने कभी किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं की थी। अगर किसी का ज़रा सा लहजा सख्त होता था तो मैं उसको झंझोड़ कर रख देता था। और तुम देखो, मुझसे मुसलसल 2 दिनों से बदतमीज़ी कर रही हो, मगर मजाल है जो मैंने तुम्हें एक भी सज़ा दी हो। अरमान साहब, वो इस वजह से क्योंकि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है? वो उठकर उसके करीब गया और उसके बालों की लटों को कानों के पीछे अड़ाने लगा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और बेचैन हो रही थी। पीछे की तरफ हटने की कोशिश की लेकिन वहां दीवार थी जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक गई। शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। न जाने क्यों ये बात उसके मुंह से फिसल गई। उसने फिल्मों और ड्रामों में भी तो यही देखा था। और ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दिया। और अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा खादिम बन गया हूं? वो अजीब से अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल करने लगा तो वो भी अब की बार धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। अगर तो आपको मुझसे सच्ची मोहब्बत हुई है तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी महबूब की हर बात मानेंगे। नादान लड़की, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसकी नाक हल्की सी खींचकर वो पीछे की तरफ हट गया। तुमसे मोहब्बत तो अपनी जगह, मगर तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब तुम्हें खुद को यहाँ के माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसके आदमी के हाथ में कोई डिवाइस उठा रखी थी। मशल समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। उसके हाथों से वो डिवाइस लेकर इसने मशल की गर्दन पर हल्का पुश किया तो कोई सुई उसे चुभी और उसके साथ ही उसने अपने मोबाइल से एक मोबाइल निकाला और मशल के सामने लहराते हुए, सुई की नोक जितनी छोटी डिवाइस मैंने तुम्हारी गर्दन में फिट कर दी है। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। अब तुम मुझे जहां कहीं भी जाओगी पता चल जाएगा। तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चीखते हुए बोली। और हाँ, तुम्हारे इनमें इजाफे के लिए एक और बात बताता चलूं कि अगर तुमने ऑपरेशन के ज़रिए से निकालने की कोशिश की तो नाकाम हो जाओगी, बल्कि उल्टा तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसकी तरफ पुरस्रार मुस्कुराहट उछालता हुआ वो वहाँ से जा चुका था। उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया था और फिर उसके साथ ही उसने इस छोटी सी लड़की को भी आज़ाद छोड़ दिया कि तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, जिससे जी चाहे मिल सकती हो, लेकिन वापस तुमने इसी हवेली में आना है। मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लो।
क्योंकि उसके बाद तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। मशल की जिंदगी यकदम बदल गई थी। उसके अकाउंट में करोड़ों के हिसाब से पैसे मौजूद थे। वो जी भरकर लौटाती थी। वो जानबूझकर इसका खर्चा करती थी, मगर बाद में उसे पता चला कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसने जैसा कहा था वैसा ही कर रहा था। मजाल है जो एक बार भी वो उसके करीब आया हो। अगर वो देखता कि वो छोटी सी लड़की बेचैन हो जाती है तो वो फौरन पीछे हट जाता। वो उसकी बहुत इज्जत करने लगा था, और ये इज्जत उस मोहब्बत की वजह से थी जो उसके दिल में मशल के लिए पैदा हो गई थी। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी जब उसे फारूक की आवाज़ सुनाई दी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं भी तुम्हारी तरह बेबस हूं। वो इंसान बहुत ज़्यादा असर रसूख वाला है, लेकिन एक तरीका है कि अगर वो जेल चला जाए तो तुम आज़ाद हो सकती हो। वो तो एक अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता उसने आज तक मुझे अगवा करने के अलावा कोई जुर्म किया होगा। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल करता है। तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। उसके पास ब्लू कलर की फाइल है। उसने मशल को फाइल के बारे में सारी डिटेल दी और उसको हिदायत की कि तुमने वो फाइल किसी तरह मेरे पास लानी है। एक बार अगर वो फाइल मेरे हाथ आ गई तो समझो कि तुम्हारे शौहर का किस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम्हारे शौहर की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, और फिर उसके बाद तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारोगी। जी चाहे तो अमेरिका चली जाना, या फिर। बात करते करते वो खामोश हो गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, दिलावर से तो अब तुम्हारी शादी हो नहीं सकती। वो तो निकाह कर चुका है, बल्कि वो तो तुमसे मिलने से पहले ही निकाह कर चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा था। उसकी बात सुनकर मशल ने गहरी सांस खारिज की। न जाने क्यों जब से अरमान उसकी ज़िंदगी में आया था तब से उसने दिलावर के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। दिलावर ने कभी भी उसे वो प्यार नहीं दिया और कभी भी उसका इस तरह से ख्याल नहीं रखा था जिस तरह से अरमान रखता था। वो उसकी बहुत इज्जत करता था और उसकी हर बात को अहमियत देता था। इसकी बातें गौर से सुनता और हर छोटी छोटी बात का जवाब देता। वो भी यकीनन उसकी तरफ माइल हो जाती अगर उसे इसकी हकीकत के बारे में ना पता चलता कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो मासूम लड़कियों का सौदा करता था। यह ख्याल आते ही उसका खून गुस्से से खौलने लगा। मगर कुछ दिनों में उसकी हरकतें बहुत मशकूक हो गई थीं। अरमान भी ये बात नोट कर रहा था। वो हर वक्त ये उसकी कागजात में घुसी रहती थी। कभी वो अलमारी में कुछ तलाश कर रही होती तो कभी उसकी लाइब्रेरी में उसकी फाइल्स के साथ छेड़खानी कर रही होती। अगर तुम्हारा जायदाद के कागजात लेकर मुझे मार कर यहाँ से भागने का इरादा है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह की कोशिश मत करना, नाकाम हो जाओगी। मुझे तुम्हारी हराम की दौलत से ज़रा दिलचस्पी नहीं है, उसने दांत पीसते हुए कहा। वो ठुठक कर अपनी जगह रुक गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ मेरे बाप दादा की मेहनत की कमाई से बना हुआ है। ये उनकी सदियों की मेहनत है जिसको तुम हराम का माल कह रही हो। जैसे मैं तो तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ नहीं हूँ, उसने नफरत से मुंह फेरते हुए कहा। अरमान को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इस लड़की के रंग ढंग देखकर इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कुछ काला है। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि बीबी जहाँ भी जाती हैं, जिससे भी मिलती हैं, मुझे उन सब के बारे में बताओ। और फिर अगले कुछ दिनों में गार्ड ने उसे फारूक के बारे में बता दिया। एक रात जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने इस छोटी सी लड़की को फारूक से बातें करते सुना। इसके लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने दिल ही दिल में फारूक का शुक्रिया अदा किया जिसने खुद ही उसे असलियत बता दी थी। यानी जिस आदमी को इतने अरसे से तलाश कर रहा था वो आदमी उसके साथ काम कर रहा था, और फिर उसे सिर्फ फाइल निकलवाने के लिए वो इसकी बीवी का ही इस्तेमाल कर रहा था। ये कहानी उसको बहुत दिलचस्प लग रही थी, और फिर अगले ही दिन उसने जानबूझकर वो फाइल मेज़ पर रख दी। उसने अपने रूम में लगे कैमरे की मदद से देखा कि उसकी बीवी बहुत पुरजोश अंदाज में वो फाइल उठाकर चेक कर रही थी। अगले ही लम्हे उसने मोबाइल उठाया और फारूक को कॉल मिला दी, और फिर उसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ कदरे वीरान जगह पर पहुंच गई।
वो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। फाइल फारूक के हाथ में थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे ओपन किया तो उसके जहन में झमाका हुआ, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था बल्कि एक फेक कॉपी थी। अचानक ही वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। अरमान खानजादा भी वहां मौजूद था। वो अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखते इत्मीनान से बोला, तुम्हें पता है कि तुमने कितने बड़े मुजरिम का साथ दिया और तुम्हें इसकी क्या सज़ा हो सकती है? लेकिन अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो तो हो सकता है मैं तुम्हें बचा लूँ। वो जानबूझकर उसको तंग कर रहा था। वैसे मैं तुम्हें इतना चालाक नहीं समझता था, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली। अरमान ने जब उसको फारूक की हकीकत के बारे में बताया, पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया और फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। और फिर उस दिन के बाद अरमान भी उससे नाराज़ रहने लगा था। वो पहले की तरह उससे बात नहीं करता था और ना ही उसका ख्याल रखता था। अब वो उसे खिंचा खिंचा सा रहता था, जबकि इसे तो पुराने अरमान की आदत थी। वो उसका ये रवैया कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उस दिन के बाद वैसे भी उसके दिल में अरमान के लिए पसंदीदगी पैदा हो गई थी और अब उसकी ये बेरुखी इसको तकलीफ़ पहुंचा रही थी। कुछ दिनों के बाद वो उसके पास गई और उसके सीने पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो छोटे बच्चों की तरह हिचकियां ले रही थी। और ये क्या हो गया तुम्हें? वो यकदम ही बौखला गया। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया और फिर उसके गिर्द अपने बाजू लपेटते हुए बोला, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मेरा दिल दुखाया है। मैं बस चाह रहा था तुम्हें एहसास हो जाए। वो अपनी गिरफ्त तंग करने लगा। वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी, मगर एक बार फिर से वो उसे अपने करीब खींच चुका था। अब दूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता बेगम साहिबा। ये सुनकर उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। गलत फहमियाँ ख़त्म हो चुकी थी, नाराज़गियाँ दूर हो चुकी थी और अब एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी उन दोनों की मुंतज़िर थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।